السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں اور بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی جو میں آج پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ اسلام آباد سے میرے ساتھ سدرا شیئر کر رہی ہیں۔ سدرا کہتی ہیں کہ میں اسلام آباد کی رہائشی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سدرا کی نانی اماں جب بالکل ینگ ہوا کرتی تھیں، تو جس گاؤں میں وہ رہتی تھیں ان کے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں تھا، اور وہ گاؤں بالکل ویران ہو چکا تھا۔ وہاں پر اس حد تک جنات تھے کہ وہاں پر کسی انسان کا رہنا ناممکن تھا۔ جو آس پاس کے گاؤں تھے وہاں کے لوگ بھی اس گاؤں کے بارے میں اکثر کہانیاں سنا کرتے تھے۔ کہا یہ جاتا تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا کوئی جادوگر تھا، جس نے اپنے شیطانی عملیات کے ذریعے وہاں پر لوگوں کا رہنا محال کر دیا تھا۔ دن دہاڑے لوگوں کو وہاں پر جنات نظر آتے تھے، اور جیسے ہی شام ڈھلتی تھی، رات ہوتی تھی، تو وہاں پر بھیانک آوازیں اور جنات اس پورے گاؤں میں بھاگتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گلیوں میں گھوڑا بھاگنے کی آواز آتی ہے، مگر وہ جنات اور وہ ایسی وہ چڑیلیں، جنات اور آفتیں تھیں جو اس جادوگر نے اس پورے گاؤں میں اپنے شیطانی عملیات کے ذریعے وہاں پر چھوڑے ہوئے تھے کہ لوگ وہاں سے ڈر کے بھاگ جائیں اور پورے گاؤں پر وہ اکیلا قبضہ کر سکے۔ بہت دفعہ گاؤں کے لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ، ہم لوگ اپنا گاؤں نہیں چھوڑ سکتے، تمہارے دن بدن کے جو بڑھتے ہوئے شیطانی عمل ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہر طرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غیر مرئی مخلوقات نظر آتی ہیں۔ سدرا کی نانی اماں بالکل ینگ ہوا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ سدرا کی نانی اماں اپنی فیملی کے ساتھ کسی دوسرے گاؤں میں جا رہی تھی۔ اس دور میں لوگ قافلوں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے۔ ان کے گاؤں کا ایک قافلہ کسی دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا۔ ان کی فیملی بھی اسی قافلے کا حصہ تھی۔ اس وقت لوگ زیادہ تر بیل گاڑیوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے، اس گاؤں کے قریب سے ہی گزر کے ان لوگوں نے جانا تھا، تب تک وہ گاؤں تقریباً خالی ہو چکا تھا، کیونکہ آئے دن وہاں پر کسی نہ کسی کے ساتھ ایسے بھیانک حادثے اور واقعات ہوتے رہتے تھے کہ وہاں پر رہنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر چکے تھے، کہیں اور دوسرے گاؤں میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ لوگوں کا، علاقائی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جنات ہمیں ڈراتے ہیں، ہم لوگ وہاں پر نارمل لائف نہیں گزار سکتے۔ کبھی بچوں کا بیمار ہو جانا، کبھی بچوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جانا، کبھی بڑوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جانا، تو ڈر کے وہاں سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ چند ایک گھر اور اس جادوگر کا گھر ابھی تک اسی گاؤں میں تھا۔ ان لوگوں کا قافلہ جیسے ہی اس گاؤں کو کراس کر رہا تھا، وہاں پر جو سڑک اس گاؤں کے ساتھ لگتی تھی، اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے درخت اور ویران علاقے تھے۔ ان کا قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ اس گاؤں میں سے بھیانک چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ چیخوں کی آوازیں اس طرح سے تھیں جیسے کوئی بہت درد اور تکلیف میں چیختا اور کراہتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے رک کر ان آوازوں پر غور کرنا چاہا، تو اس قافلے کے ساتھ جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان آوازوں پر غور مت کرو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس سڑک سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر ہم لوگوں کو کچھ لوگ مار رہے ہیں، ہماری مدد کریں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، جس پر قافلے کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں، جبکہ ان کو روکنے والے اور بھی لوگ تھے، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ ضروری نہیں
कि सभी यहाँ पर जिन्नात हों, कोई इंसान भी हो सकता है, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। काफिले से 4 से 5 लोग उस औरत के साथ उसकी मदद के लिए चले गए। बाकी लोग दूर ही वहाँ पर उनका इंतज़ार करने लग गए। काफ़ी देर गुजर गई मगर उन 4 लोगों का 5 लोगों का कोई पता नहीं था। फिर उनको ढूंढने के लिए काफिले से कुछ और लोग उस गांव में गए। जब वो लोग वहां पर गए तो वो गांव बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान है ही नहीं। और उधर से शाम होने वाली थी। थोड़ी ही देर के बाद जो 2 लोग उन बाकी काफिले के लोगों को बुलाने गए थे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुएं वाली तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। जब वो लोग गांव के उस कुएं के पास गए तो उस कुएं के अंदर से बहुत भयानक रोने की आवाजें आ रही थी। हर तरफ उन लोगों ने झांक लिया मगर उन्हें गांव में कोई नजर नहीं आ रहा था। कभी ऐसा लगता था कि उनके पीछे कोई चल रहा है और कभी ऐसा लगता था कि उनको कोई आवाज दे रहा है। हर तरफ वो लोग ढूंढ रहे थे कि हमें अपने काफिले के वो लोग मिल जाएं। उनमें से एक आदमी जिस तरफ गांव का दूसरा हिस्सा था उस तरफ ढूंढ रहा था कि हम लोगों के साथी मिल जाएं। वो दोनों एक एक घोड़े पर सवार थे। थोड़ी ही देर के बाद उसने अपने साथी को आवाज दी कि यहाँ पर कुछ लोग गिरे पड़े हैं। वो बिल्कुल दरख्तों में उनके 3 साथी बेहोश पड़े थे और उनके जिस्म के ऊपर इस तरह से निशान थे जिस तरह से उनको बहुत बेदर्दी से किसी ने मारा है। बड़ी मुश्किल से उनको हिलाया जुलाया मगर उनमें से एक आदमी का पता नहीं चल रहा था। अभी वो होश में नहीं थे, बहुत डरे और सहमे हुए थे। उन 2 घोड़ों के ऊपर उन आदमियों को लेकर उस गांव से जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि छोटे छोटे बच्चे उस गांव में घूम रहे हैं। कभी वो भागकर इधर जाते थे, कभी वो भागकर उधर, और अचानक से गायब हो जाते थे। बिल्कुल शाम ढल चुकी थी और उस गांव में से भयानक आवाजें आ रही थी। कभी ऐसा लगता था कि कोई गाय बोल रही है और एकदम से उन्होंने देखा कि सामने से बिल्कुल एक जानवर चलता हुआ आ रहा है और वो देखने में बिल्कुल गाय की तरह ही लग रहा था मगर उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा रोशन और चमक रही थी। ये लोग उसको देख के डर गए। जैसे ही वो इनके करीब आने लगा वो गायब हो गया। ये लोग बहुत डर गए थे और तेजी से वहां से अपने घोड़े लेकर अपने काफिले की तरफ चले गए। काफिले के लोगों ने जब उनको देखा वो बहुत ज्यादा घबराए। उन लोगों को अभी तक भी होश नहीं आ रहा था। काफिले के जो बुजुर्ग लोग थे उनका यही कहना था कि तुम लोगों को बहुत रोका था कि वहां पर मत जाओ, ये गांव मशहूर है, इसी वजह से ये गांव खाली हो चुका है कि यहाँ पर उस जादूगर ने अपने शैतानी अमलियात के जरिए पूरे गांव को वीरान कर दिया है। फिर उनमें से बड़ी मुश्किल से एक आदमी को होश आया तो उसका ये कहना था कि वो औरत जो हमें अपने साथ बुलाकर ले गई थी वो कोई औरत नहीं थी। जैसे ही हम उस गांव में दाखिल हुए वो हमें एक घर में ले गई और जब हम उस घर में गए तो वहां पर उसकी शक्ल की उसकी हूबहू हम शक्ल और भी बहुत ज्यादा औरतें थीं। उन्होंने एकदम से हम लोगों पर हमला कर दिया। उनकी आवाजें बहुत भयानक थी। हमें नहीं पता कि उन सब औरतों ने हमें कहाँ पर फेंका। उनमें से एक आदमी का अभी तक भी पता नहीं था। बहुत कोशिश की उन्होंने कि उसका पता चल सके। इस वजह से वो लोग आगे अपने काफिले को नहीं ले जा सके और उन्हें वहीं से वापस अपने गांव में आना पड़ा क्योंकि उन 3 आदमियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब वहाँ के जो इमाम साहब थे उन्होंने उन आदमियों को देखा तो उनके जिस्म पर इस तरह से निशान थे जिस तरह से लंबे लंबे नेल्स के साथ उनके जिस्म के ऊपर किसी ने बहुत बुरी तरह से वार किए हैं। जगह जगह से उनके जिस्म से खून बह रहे थे। वो बहुत घबराए हुए थे। इमाम साहब का ये कहना था, हैरत की बात यह है कि ये जिंदा कैसे बच गए क्योंकि इनके ऊपर उन जिन्नात ने बहुत भयानक वार किए थे। बहुत से लोग वहां पर ये बात कहते थे कि वो जब जिन्नात इंसान पर वार करते हैं तो बहुत से लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, कुछ का ज़हनी तवाज़न उलट जाता है। वो इतने भयानक जिन्नात हैं। सिद्रा की नानी अम्मा ने भी
उन आदमियों को देखा था, क्योंकि वो उनके काफिले के साथ ही थी। कुछ दिन वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहे। उनमें से एक आदमी का वो अपना जहनी तवाज़न खो बैठा था, क्योंकि उसको इतना खौफजदा होकर उन जिन्नात ने डराया था या उसके ऊपर जो वार किया था, उसकी वजह से वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सका। और वो जो उनके साथ उनका एक और साथी था जो लापता था, वो कभी भी वापस नहीं आया। फिर वो गांव बिल्कुल वीरान हो चुका था। वहां पर कुछ अरसे के बाद उस जादूगर की लाश पाई गई थी, जो कि बिल्कुल जहाँ से गांव शुरू होता था उस सड़क पर उस जादूगर की लाश थी, और उसके भी बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद कभी भी उस गांव की तरफ कोई नहीं जाता था। अगर भूले से वहां से कोई मुसाफिर गुजरता था तो वो जिन्नात मुख्तलिफ रूप बदल कर उस गांव में उसको ले जाते थे। बहुत खुशकिस्मत होते थे वो लोग जो वहां से अपनी जान छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाते थे। सिद्रा की नानी अम्मा कहती हैं कि वहाँ का वो गांव बहुत मशहूर था, कि वहां पर फिर इंसान नहीं सिर्फ जिन्नात आबाद थे। कहती हैं वक्त के साथ साथ वो गांव एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर गया था। जो घर वहां पर मिट्टी के हुआ करते थे वो भी गिर चुके थे, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा असेब और जिन्नात थे। ये सिद्रा की नानी अम्मा ने उन्हें एक सच्ची कहानी अपने दौर की सुनाई थी, जो सिद्रा ने हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। अल्लाह आपकी नानी अम्मा को लंबी ज़िंदगी अता करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बिजनेस मैंने भी अक्सर जगह पर ये सुना है कि बाज़ औक़ात पूरी पूरी सोसाइटीज़, पूरे पूरे इलाके वीरान हो जाते हैं गैर मरई मखलूक़ात के असर की वजह से। मुझे समझ नहीं आती क्या वहाँ पर लोग ऐसे शैतानी अमल करके जन्नात को दावत देते हैं कि वो इंसानों की ज़िंदगियों को बर्बाद करें। आखिर ऐसे लोगों को हासिल कुछ भी नहीं होता, वो अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। शायद वो जैसे शैतानी अमल करते हैं वो ये समझते हैं कि जिन्नात उनके कब्जे में जब होंगे तो वो उनसे कोई काम ले सकेंगे। तो ये बहुत गलत बात है। जब भी कोई इंसान किसी जिन को, किसी गैर मरी मखलूक को, चाहे उसकी कोई भी फॉर्म हो, अपने काबू में करने की कोशिश करता है, उसका चिला करता है या उसको कोई अमलियात करता है, वक्ती तौर पर तो वो ये समझता है कि वो जिन, वो गैर मरी मखलूक उसके अंडर कंट्रोल है। मगर ये बात गलत होती है। अगर आप उनसे कोई काम करवाते हैं तो उसके बदले में वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपकी जान भी ले सकते हैं। इन कामों से अपने आप को दूर रखा करें। शैतानी अमलियात में सवाए नुकसान के कुछ भी नहीं है। वैसे भी कुरान करीम में इरशाद है कि जादू करने वाला और करवाने वाला जहन्नुम में जाएंगे। ऐसे गुनाह से हमेशा बचे रहें। कभी भी ऐसे कामों में अपने आप को बिल्कुल भी मत इन्वॉल्व करें जो आपके लिए नुकसानदेह हो। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये हम लोगों के अपने रिलेटिव्स हैं, उनके घर की एक खौफनाक कहानी है। वो जिस एरिया में रहते हैं, मैं उस जगह का नेम ऑन एयर नहीं कर सकती। उनको अपने घर में ये महसूस होता है कि उनके घर में गैर मरई मखलूक़ात का बसेरा है। उनका एक मखसूस रूम है जहाँ पर उनको वाज़िया ये एहसास होता है कि वहाँ पर कोई होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अगर सोता है तो कभी ना कभी कोई आहट, किसी का गुजरना, किसी का होना महसूस होता है। कभी कभार वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि कोई खड़ा है, कभी ऐसा महसूस होता है कि वो लोग सारे बाहर होते हैं तो उस कमरे में कोई बैठा है। जब गौर किया जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर उनके घर में एक काले रंग की बिल्ली आती है जो उनके फ्रिज में से मीट निकाल कर खाती है। वो हैरान होते हैं कि बंद फ्रिज को खोलकर वो सिर्फ मीट लेती है बीच में से, ना दूध को छेड़ती है ना किसी और चीज़ को। और फिर वो फ्रिज बाकायदा बंद भी होता है। 2 से 4 दफ़ा उन लोगों ने नोटिस किया कि हम लोगों के फ्रिज में से जो भी हम मीट रखते हैं, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, वो कौन निकालता है। फिर एक दफ़ा जब उन लोगों ने गौर किया तो एक स्याह कलर की बिल्ली उनके उस कमरे में बैठकर वो मीट खा रही थी। फिर उन लोगों ने इसको क्रॉस चेक करने के लिए मीट का एक बॉक्स बनाया
और उसको अच्छी तरह से रैप किया और वेजिटेबल बॉक्स के अंदर उसको रखा कि अगर यहाँ से भी मीट गायब हुआ तो फिर ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं है। और ऐसा ही हुआ। लोगों ने फ्रिज का जो वेजिटेबल बॉक्स होता है उसके अंदर वो बॉक्स रखा जिसके अंदर वो मीट था और अच्छी तरह से रैप था। वो बॉक्स उस बिल्ली ने फ्रिज खोलकर उस बॉक्स में से निकाल कर भी वो मीट खा लिया। यहाँ तक कि फ्रीज हुआ हुआ मीट भी वो नहीं छोड़ती थी। उसके बाद वो कहते हैं कि जब भी हमें मीट की ज़रूरत होती है, पकाना होता है घर में जब भी, तो हम फ्रेश ही मार्केट से लाकर उसको यूज़ करते हैं। उनके घर में शुरू शुरू में चमेली के फूल रखे होते थे। उनके सहन में लोगों ने वहाँ पर पौधे रखे हुए थे जिनमें एक चमेली का पौधा भी था। तो वो कहती हैं आधी रात का टाइम अगर हम लोग अपने वॉशरूम में जाते थे तो ऐसा महसूस होता था कि चमेली के उन पौधों के पास कोई खड़ा है। एक साया नुमा परछाई वहाँ पर नज़र आती थी जो बिल्कुल विजिबल होती थी, उसको देखा जा सकता था, जो चमेली के उन पौधों के पास खड़ी होती थी और एकदम से पलक झपकते वो गायब हो जाती थी। इसी तरह से सर्दियों में एक दफ़ा उनकी बेटी रात के टाइम उठी वॉशरूम में जाने के लिए। जैसे वो अपने रूम से बाहर निकली, बहुत बड़ा उनका सहन था। उस सहन में ऐसी सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी और सीढ़ियों के बिल्कुल सामने वो चमेली के पौधे थे। तो वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। जब ये गौर करने लगी कि वहाँ पर कौन खड़ा है तो उसकी आंखों के सामने वो सीढ़ियों से चढ़ती हुई छत की तरफ गई और गायब हो गई, जिस पर उनकी बेटी बहुत डर गई और आकर अपने बाकी सब घर वालों को जगाकर ये बात बताई। उसके बाद उन लोगों ने अपने घर से चमेली के वो पौधे निकाल दिए थे, मगर उनके उस मखसूस कमरे में अब भी वो कहते हैं कि वहाँ पर सोया नहीं जाता। हम लोगों को डर लगता है, वाज़िया महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है। और जिस फ्रिज में से वो मीट बिल्ली निकाल कर खाती थी वो फ्रिज भी उनके उसी रूम में रखा हुआ था। ये आज की खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। सिर्फ बहुत डर लगता है अगर किसी घर में, किसी जगह पर जहाँ पर हम लोगों का रहना हो, जहाँ पर हम लोगों का 24 घंटे का रहन सहन, उठना बैठना हो, वहाँ पर ऐसे मामलात, ऐसे सिचुएशन बन जाए तो इंसान अपने घर में ही घुट घुट के रहता है, खौफजदा रहता है। फिर वहाँ पर अकेले रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज़ अपने घर में सूरत बकरा लगाया करें, मगरिब के नमाज के टाइम लगाया करें, सुबह लगाया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, नमाज पढ़ा करें पाबंदी के साथ, आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक का विर्द रखा करें। मगरिब की अजान होती जाए तो अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ बंद कर दिया करें, क्योंकि मगरिब की अजानों के वक्त, जिस टाइम मगरिब की अजान होती है, आसमान से गैर मरई मखलूक़ात ज़मीन पर उतरते हैं और वो रिहाइश के लिए जगह ढूंढते हैं, ठिकाने ढूंढते हैं। जिन घरों के, जिन कमरों के खिड़कियाँ दरवाजे खुले होते हैं वो वहाँ पर मुकीम हो जाते हैं। और बाज़ुकात वो ऐसे जन्नात होते हैं जो वहाँ से नहीं जाते और अपना बसेरा वहाँ पर कर लेते हैं। जिस टाइम मगरिब की अजान का टाइम होता जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा बंद किया करें, क्योंकि जब बिस्मिल्लाह पढ़कर आप दरवाज़ा बंद करते हैं तो कोई शैतानी ताकत उसको खोल नहीं सकती। और जब अजान कंप्लीट हो जाए तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा खोल देना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखा करें। मेरी आप सब के लिए, हम सब के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह हमें ऐसे खौफनाक और भयानक हमलों से हमेशा महफूज रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। मेरे कुछ लिसनर्स की खौफनाक कहानियाँ मेरे पास है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।